Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, good morning, have a good day. I hope you all are fine and enjoying your online classes. Students, before going to the new topic, we have discussed some points from the previous lecture. So let's start. Students, the first one point is gram atomic mass. Students, do you know what is gram atomic mass? जैसा कि आपके पास नाम से जाहिर है, एटॉमिक मैस इन ग्राम. व्हाट इज इट? एटॉमिक मैस इन ग्राम. किसी भी एटम का मैस जब हम ग्राम में लेंगे तो वो आपके पास ग्राम एटॉमिक मैस होगा. ठीक है. सो हाउ वी कैन डिफाइन इट? व्हेन द रिलेटिव एटॉमिक मैस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम वी कॉल इट एज ग्राम एटॉमिक मैस. कि जब हम किसी भी रिलेटिव एटॉमिक मैस को ग्राम में डिफाइन करते हैं तो वो आपके पास रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मैस होगा. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज एन एटम एंड इट्स एटॉमिक मैस इज 1.008 एंड दिस इज आल्सो नोन एज मोल. दिस इज आल्सो कॉल्ड मोल. मोल हम कैसे कहेंगे? कि मोल हमने कहा था किसी भी कोई भी एटॉमिक मैस हो या मॉलिक्यूलर मैस हो या फार्मूला मैस हो, जब हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके पास क्या है? मोल है. फॉर एग्जांपल 1.008 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मैस? Same like gram atomic mass. Molecular mass in gram. Molecular mass in gram. जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का मैस ग्राम में लेंगे तो दिस इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस. फॉर एग्जांपल द वाटर मॉलिक्यूल हैविंग 18 ग्राम वेट. ठीक है. इसका वेट या इसका मैस आपके पास 18 ग्राम है विच इज इक्वल टू 1 मोल. इज इट क्लियर? सो इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड its molecular mass is 44 gram which is equal to 1 mole. ठीक है. सो हम molecular mass को define कैसे कर सकते हैं? The molecular mass of a substance expressed in gram is called gram molecular mass. It is also known as mole. Now students, do you know what is formula mass? Formula mass is used for ionic compounds. Is used for ionic compounds. So when we represent formula mass in gram, this is known as gram formula mass. So how we can define it? We can define it when the formula mass of an ionic compound is expressed in gram, it is called gram formula mass. For example, sodium chloride is a compound having 58.5 gram formula mass. When we express formula mass in gram, then it is gram formula mass, which is also known as mole. So it is equal to 1 mole. So हम ये लिख सकते हैं 58.5 ग्राम पर मोल. या इन केस हमने वाटर के लिए लिखा था 18 ग्राम, तो हम लिख सकते हैं 18 ग्राम पर मोल. Is it clear? Now students, we are moving towards today's topic, that is chemical calculation. Is it clear? Students, page number 31 from book. So open your books and take your pencil for underline the new words. So students, in a chemical calculation we can calculate the number of moles from a given mass of a substance. कि हम number of moles calculate करेंगे chemical calculation में, जबकि आपके पास मैस जो है वो गिवन होगा. इज इट क्लियर? या फिर गिवन मैस को ही हम जो है मैस को फाइंड आउट करेंगे और आपके पास नंबर ऑफ मोल गिवन होंगे. ठीक है. या फिर द सेकंड वन इज वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल भी हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे? कि जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. हम नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Chemical calculations is basically the numerical calculation in which we can calculate the number of mole
or number of particle. When we calculate the number of mole, we will use given mass of a substance, and when we calculate the number of particle, then we will use number of moles. So let's start. So students, in chemical calculation there are two conversion concepts. The first one is mole into mass and the second one is mole into particle. हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे मोल इनटू मास. फर्स्ट कन्वर्जन को हम देखते हैं कि फर्स्ट कन्वर्जन आपके पास क्या है, दैट इज मोल इनटू मास. स्टूडेंट्स, डू यू नो हाउ वी विल कैलकुलेट मोल मास कैलकुलेशन? इन मोल मास कैलकुलेशन we can calculate the number of moles or we can calculate mass of a substance. Is it clear? कि अगर आपके पास number of moles present होंगे और आपको कहा जाएगा कि mass of a substance find करें, तो आप क्या करेंगे, number of moles को put करके mass of a substance find करेंगे. या फिर आपको कहा जाता है कि आपने number of moles find करने, तो आपके पास जो है mass given होगा. Is it clear? When a chemical reaction occurs, changes take place. These changes can be expressed in terms of mole or in terms of mass. Is it clear? When we say molar mass of water, it's, for example, the molar mass of water is 18 gram per mole. The relationship is treated as conversion factor. For example, हमने यहाँ पर कहा कि आपके पास मोलर मास जो है वो 18 ग्राम पर मोल है वाटर का, तो हम कहेंगे हाउ मैनी मोल्स आर देयर. सो एक मालिक्यूल का मालिक्यूलर मास जो है वो इक्वल है 1 मोल के. ठीक है, आपके पास मालिक्यूलर मास इन ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी तरह से हम बात करते हैं अगर एल्युमिनियम की. ठीक है, एल्युमिनियम जिसका आपके पास एटॉमिक मास है 27 ग्राम, तो हम कहेंगे 27 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल. स्टूडेंट्स, फॉर मोल मास कैलकुलेशन देयर इज अ फार्मूला कि जिस फार्मूला को हम पुट करके इजीली मोल मास कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो द फार्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स. अभी मैंने आपके लिए नंबर ऑफ मोल्स लिखा है, लेकिन आगे में n ही लिखूंगी, स्मॉल n. ठीक है, सो स्मॉल n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल. नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास. ये फार्मूला किस सूरत में अप्लाई होगा कि जब आपके पास किसी भी सब्सटेंस के आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो, तो आप क्या फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास. लेकिन इन केस आपको कहा जाए कि मास इन ग्राम फाइंड करें और आपको नंबर ऑफ मोल गिवन हो, तो तब आप क्या करेंगे, तब आपने फार्मूला को रीअरेंज करना है. कैसे, सिंपल अरिथमेटिक से. इसी तरह से आपने डिवाइडेड बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है फार्मूला को. सो मास इज इक्वल टू, मास को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास. ठीक है, मोलर मास. इज इट क्लियर? या आपने फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है. सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स कि आपने कुछ एग्जांपल्स करनी है जहां से आप न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे, तो फिर आपको समझ आएगी कि आपने किस तरह से ये मोल मास कैलकुलेशन करनी है. हम सबसे पहले जो है दोनों फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे. पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, देन हम मास इन ग्राम फाइंड करेंगे, ताकि आपको दोनों फार्मूलाज की अच्छे से समझ आ सके. सो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. और फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है, स्टेटमेंट को गौर से सुनिएगा. कैलकुलेट द मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने गिवन डेटा बनाना है. तो स्टूडेंट्स, हमने गिवन डेटा बना दिया. सबसे पहले हम गिवन डेटा में क्या लिखेंगे कि आपके पास जो जो स्टेटमेंट में गिवन है, तो स्टेटमेंट में आपके पास सिर्फ एक वैल्यू गिवन है जो कि 60 ग्राम है. तो आपके पास मास क्या है, मास इज इक्वल टू 60 ग्राम. टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. आपने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, तो आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो है आपने कैलकुलेट कर देने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू अननोन. तो अब आप इसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, जो अभी हमने मोल मास कैलकुलेशन के लिए फार्मूला यूज किया था, उसी फार्मूला को हम लिखेंगे. तो फार्मूला आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम, ठीक है, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब आप न्यूमेरिकल की तरफ देखिए, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं, मैस इन ग्राम आपको गिवन है विच इज 60 ग्राम, और मोलर मैस आपने फाइंड करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कैसे आप मोलर मैस फाइंड करेंगे? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मोलर मैस आप कैसे फाइंड करेंगे, गिवन कंपाउंड के, जो भी आपके पास गिवन कंपाउंड है, इसके एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को कंबाइन करके। सो उसी तरह से आप मोलर मैस के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का आपने मोलर मैस फाइंड करना है, C+O2, कार्बन एटॉमिक मैस 12 प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक मैस 16 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 2, ठीक है, नंबर ऑफ एटम आपके पास 2 है। सो आप क्या करेंगे, 12 प्लस 16 2 जार 32 विच इज इक्वल टू 4 and 4 44 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर मास फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो आपने इसी तरह से आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट करेंगे। N इज इक्वल टू मैस इन ग्राम आपके पास क्या है 60 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस आपके पास क्या आया था कार्बन डाइऑक्साइड का, वो आपके पास आया था 44 ग्राम पर मोल। अब आप देखें कि जो जो यूनिट्स कैंसिल होती हैं आप कैंसिलेशन कर दें, ठीक है, कैंसिल होगी। अब आपने 60 को 44 पे डिवाइड करना है। जब आप 60 को 44 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1.364 मोल, ठीक है, ये आपके पास आया नंबर ऑफ मोल्स। बट स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने याद रखनी है लाजमी के, आप जब नंबर ऑफ मोल फाइंड कर रहे हो तो आपके पास आंसर भी यूनिट किसकी आनी चाहिए, मोल की ही यूनिट आनी चाहिए। मैस फाइंड करेंगे तो आंसर ग्राम में आएगा, लेकिन आप जब मोल फाइंड करेंगे तो आंसर आपके पास मोल में ही आना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ मूव टूवर्ड्स द सेकेंड एग्जाम्पल, जहां पर हम जो है इसी फार्मूला को अप्लाई करके मैस इन ग्राम फाइंड करेंगे। So students, here is the second example. हमारे पास एग्जाम्पल अब आ रही है, how many grams of water are there in 3.5 moles of water, कि आपने 3.5 moles of water में अपने ग्राम में मैस कैलकुलेट करना है कि कितना मैस आपके पास है 3.5 मोल्स में, ठीक है। तो गिवन डाटा मैंने पहले से बना दिया है। गिवन डाटा में आप क्या लिखेंगे, जो कुछ आपको स्टेटमेंट में गिवन है। तो स्टेटमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 3.5 मोल। फाइंड हमने क्या करना है, मैस इन ग्राम, ठीक है। सो हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, वही फार्मूला आपके पास है। सो स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। वही फार्मूला आपके पास जो है मोल मैस कैलकुलेशन वाला, इसको सिर्फ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में n डिवाइडेड बाय 1, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, सो फार्मूला मॉडिफाई होकर हमारे पास क्या है, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो मैस इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब आपको चाहिए मोलर मैस, तो मोलर मैस अब वाटर आप कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह से आपके पास H2O फार्मूला है वाटर का, दोनों की एटॉमिक मैसेज को कंबाइन करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है, एटम 2 है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस क्या है 16, 2 1 is 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्राम पर मोल आपके पास यूनिट आ जाएगी। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। सो देखिए मैस इन ग्राम आपने फाइंड करना है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आपके पास क्या है 3.5 मोल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास मोलर मैस क्या आया था 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोल आपके पास डिवाइड में है, सो मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 63। आंसर क्या आएगा, मोल आपस में कैंसिल हो गया तो यूनिट क्या रहेगी ग्राम। सो देख सकते हैं आपने मैस फाइंड किया, तो मैस के लिए आंसर आपके पास क्या आएगा इन ग्राम। सो आपने इस चीज़ को देखना है कि जब आप मोल फाइंड करें तो आपके पास आंसर मोल में आना चाहिए, जब आप मैस फाइंड करें तो आंसर ग्राम में आना चाहिए, ठीक है, ये लाजमी है। स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वन पॉइंट इज मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ केमिकल कैलकुलेशंस। हियर वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड number of particles, that is Avogadro's number.
क्योंकि हमने एवोगैड्रोस नंबर में कहा था नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज एटम आइन या मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इज इक्वल टू द एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, सो हियर वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर. For example, 1 mole of any substance is equal to Avogadro's number, that is 6.023 into 10 power 23, and the unit is atom, ions are molecules. So हम इसको collectively क्या कहेंगे, number of particles. हम number of particles को find करने के लिए उसी तरह से एक formula use करेंगे, और वो formula आपके पास क्या है. So students, the formula for mole particle calculation is number of mole is equal to number of particle divided by Avogadro's number. वो फार्मूला जो कि हमने एवोगैड्रोस नंबर को पढ़ते हुए हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि हम किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. ये फार्मूला उस कंडीशन में अप्लाई होगा जब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे और नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं. लेकिन इन केस आपको कहा जाए कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, एवोगैड्रोस नंबर है, और आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप इसी फार्मूला को सेम से वे में आपने क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है. एज ए रिजल्ट आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, ये दो कंडीशंस आपके पास फार्मूला की हैं. ठीक है, जिसमें हमने अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, या फिर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल यूज करने हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ वी विल कैलकुलेट द मोल मास मोल पार्टिकल कैलकुलेशन. द फर्स्ट एग्जांपल इज हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 into 10 power 23 हाइड्रोजन एटम्स. स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए कि स्टेटमेंट आपके पास क्या है. सबसे पहले हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने. आर देयर इन, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, 8.9 into 10 power 23. सो हम गिवन डेटा कैसे बनाएंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 8.9 into 10 power 23 एंड द एवोगैड्रोस नंबर इज 6.023 into 10 power 23 atom ions are molecule. Now to find, here we will find the number of moles. So the formula for this numerical is, students, the formula is number of mole is equal to number of particle divided by Avogadro's number. So putting the value in a formula, so number of mole is equal to number of particle, that is 8.9 into 10 power 23 divided by number of mole is equal to 6.023 into 10 power 23. So when we divide 8.9 into 10 power 23 divided by 6.023 into 10 power 23, the answer will be, स्टूडेंट्स, जब हम 8.9 इंटू 10 पावर 23 को 6.023 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.48 मोल्स. सो आपने देखा कि हमने फाइंड किया नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मोल के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया था नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. सो नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास गिवन है फार्मूला में, और नंबर ऑफ एंड एवोगैड्रोस नंबर आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है, तो आपने दोनों को डिवाइड किया, एज अ रिजल्ट आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए. ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, जहां पर हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल. सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एग्जांपल इज हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज. स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन डाटा क्या है कि हमें 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, number of mole is equal to 5 mole and Avogadro's number is equal to 6.023 into 10 power 23. और हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल. नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू अननोन. नेक्स्ट फार्मूला इज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. लेकिन हमारे पास यहाँ पर बात आ रही है कि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने, तो हम फार्मूला के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. सो नंबर ऑफ मोल हमारे पास गिवन है, क्या है हमारे पास वैल्यू, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 5 मोल
मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, हमने फाइनली वैल्यूज पुट कर दी है। 5 मोल मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10 पावर 23। सो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो हमने जो वैल्यू फाइंड की है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 30.11 इंटू 10 पावर 23। जब हमने नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 30.11 इंटू 10 पावर 23. Students, is it clear? Now students, come towards the summing up. The first point is gram atomic mass. Students, what is gram atomic mass? When the relative atomic mass is expressed in gram, it is known as gram atomic mass. And what is it, gram molecular mass? When we represent molecular mass of a substance in gram is known as gram molecular mass. Now what is gram formula mass? When we calculate the ionic compound or when we represent the mass of ionic compound in gram, it is known as gram formula mass. And the next point is mole mass calculations. In mole mass calculation, there is a relationship between number of moles of a substance and mass of a substance. In mole mass calculation, we can calculate the number of moles or either mass of a substance. And the formula for mole mass calculation is number of mole is equal to mass in gram of a substance divided by molar mass of a substance. And the next point is mole particle calculation. Now students, here we will discuss the relationship between mole and particles. For example, mole and Avogadro's number. Here we will discuss the relationship between mole of a substance and Avogadro's number, that is 6.023 into 10 power 23. And the formula for Avogadro's mole particle calculation is number of mole is equal to number of particle divided by Avogadro's number. And you can modify or rearrange the formula as requirement. So is it clear? Now students, move toward the home assignment. There are 2 numericals for you. आपने उसी पैटर्न से numericals करने हैं जिस तरह से आपको लेक्चर में समझाया गया, ठीक है. The first one numerical is how many moles are there in 90 gram of water. ठीक है, कि आपने number of moles find करने हैं in 90 gram of water. ठीक है, so आप जो है mole mass calculation यहाँ पर आपके पास क्या है, mole and mass calculation है. ठीक है, वहाँ से फार्मूला आप अप्लाई करेंगे. And the second one is how many moles are of carbon dioxide are there in 3.01 into 10 power 23 molecules of carbon dioxide. तो आप यहाँ पर देखें कि आपके पास मोल पार्टिकल कैलकुलेशन है. ठीक है, सो आपने यहाँ पर मोल पार्टिकल कैलकुलेशन लेके वहाँ से आपने फार्मूला अप्लाई करके इन दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है. ठीक है, इज इट क्लियर?